रिमूव्ह झाला तर परत रिजॉईन करा. इथे काहीतरी मला मेसेज येतोय. हॅलो मॅम. बोला. मॅम मला एक विचारायचं आहे. हा बोला ना. मॅम ॲज टेम्परेचर चेंजेस द व्हॅल्यू ऑफ रेजिस्टन्स इज ऑल्सो चेंजेस. येस. व्हाय? I will explain you. Wait for some time. बताती हूँ. See, many of students, so 35 students have joined the Google Classroom. किसको प्रॉब्लम आ रहा है? प्रॉब्लम किसको आ रहा है? ओके फाइन, नहीं आ रहा है किसी का मुझे प्रॉब्लम. आ रहा था. साहिल, यस मैम. तुझे प्रॉब्लम आ रहा है क्या? हाँ यस मैम, ज्वाइन ही नहीं हो रहा था. ओके वेट, सी. मैम मैं और एक बार ट्राई करके देखता हूँ, कल बताता फिर. मैंने नया जो कोड आपको सेंड किया है, दैट कोड यू हैव टू ज्वाइन. फॉरगेट अबाउट प्रीवियस वन. ओके मैडम यू. I will display. Okay, in last 5 minutes I will display the code on screen. ठीक है? ओके मैम, थैंक यू मैम. हाँ, because what happen, as I said you कि when you will get the college email IDs, then we will start the Google Classroom, but it will take more time. So from my personal mail, I created a Google Classroom, and that code I shared with you. I think on Thursday या Saturday कौन से तो दिन में मैंने send किया है, and 35 people have joined also. ठीक है? So in last 5 minutes मुझे एक रिमाइंड करो कि मैम प्लीज डिस्प्ले द कोड. आई विल अगेन डिस्प्ले दैट कोड ऑन स्क्रीन एंड देन यू कैन ज्वाइन. ओके सो किसने पूछा है मुझे व्हाई द रेजिस्टेंस चेंजेस एज टेम्परेचर चेंजेस? कौन था वो? मैम मी. ओके प्रीतम. ओके फाइन. यस. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू एंड देन वी विल स्टार्ट द एक्चुअल syllabus. Fine. See, every material is having the electron, whether it is the conductor, insulator, or semiconductor. Is it correct? Is it correct? यस मैम. Yes. यस. Okay. Now suppose the consider the case of conductor. Okay. Conductor. What is the effect of temperature on resistance of conductor? Can anyone tell me? If temperature increases, what will happen in case of resistance of conductor? Resistivity increases. Resistance. Don't get confused in resistivity and resistance. Resistivity is different, resistance is different. What happens in case of resistance? रेजिस्टेंस क्या होता है रे? टेम्परेचर इंक्रीज किया तो कंडक्टर्स में क्या होगा? इंक्रीज. Increases. Okay, इंक्रीज. Vishal, correct. What happens in case of the conductor's resistance increases? Now Pritam ask me why this happens, increase क्यों होता है? ठीक है. So all of you know that metals, okay, are good conductors of electricity, means good conductors. ठीक है. These are good conductors of electricity, and they are good conductors of electricity. Why? Because they have the free electrons. They contains the free electrons. See, as there are free electrons already exist. Okay, there are the free electrons already exist in case of the conductor. What happens whenever you are going to increase the temperature? At that time those electrons will gain the energy. ठीक है. एंड बाकी के जो भी रहेंगे वो भी क्या करेंगे? those electrons will gain the more amount of energy due to that temperature, and what will happen? There is the collision between the नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. वहां पे क्या हो जाएगा? जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वो जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको ज्यादा एनर्जी आएगी. ठीक है.
अभी देखो, अगर मैंने आपका सिविल का क्लास सपोज 58 स्टूडेंट्स है, ठीक है, नाउ 58 स्टूडेंट्स इन वन क्लासरूम, दैट इज ओके, बट मैंने अगर मैकेनिकल वालों को भी बताया कि एक, एंड सिविल वालों को एक ही क्लासरूम में बताया कि बैठो, व्हाट विल हैपन एट दैट टाइम, व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ कोलिजन, वहां पे ज्यादा शोर मचाएंगे आप, ठीक है। सो सेम थिंग हैपन इन केस ऑफ द conductors or metals. Whenever temperature increases, at that time there will be a more free electrons, more in the sense there will be a electrons with high amount of energy, and because of this there will be a collision, वहां पे एक्सीडेंट हो जाएगा एक दूसरे से। एंड अगर इलेक्ट्रॉन का वहां पे एक्सीडेंट हो रहा है तो करंट फ्लो होने के लिए वहां पे कुछ तो प्रॉब्लम आ जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर करंट के लिए वहां पे कुछ प्रॉब्लम फ्लो होने के लिए कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसका मीनिंग क्या है रे, रेजिस्टेंस क्या हो गया उसका, इंक्रीज हो गया। इफ देर इज अ ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, दैट मीन्स देर इज द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Now suppose there is a semiconductor, ठीक है, एट नॉर्मल टेम्परेचर सेमीकंडक्टर्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इज इट करेक्ट? बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बट व्हाट हैपेंस इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर्स, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, सो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो स्टेबल थे पहले, ओके, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हेल्प नहीं कर रहे थे। सो अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, द इलेक्ट्रॉन्स विल गेन द एनर्जी एंड दे विल स्टार्ट मूविंग, दे विल स्टार्ट मूविंग। अगर इलेक्ट्रॉन्स की वहां पे पहले स्टेबल थे एंड बाद में उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो गई, देन what is the result, अगर इलेक्ट्रॉन्स वहां पे मूव हो रहे थे, there will be the flow of current, correct? So therefore in case of semiconductor we are calling कि whenever temperature increases resistance decreases, अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है उसका मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया, ठीक है। टेम्परेचर कम था, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही थी, टेम्परेचर इंक्रीज किया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इज इट करेक्ट? ओके। Okay, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Now we will start the syllabus. Let me drop one message on the your group. Very few students are there. फर्स्ट लेक्चर नव्हतं खरे आज? नंतर आहे मॅडम. काय झालं? नव्हतं. ओके. Attendance. Okay, and one more thing, instruction for you people. As I said, attendance is collected automatically, and uh, in last 5 minutes, I am going to uh, call one by one, and then I will mark the attendance also. And जो automatic download होती है, on that I am getting the uh, who is present for how many minutes. Okay, so it is very it so attendance will be monitored strictly, नहीं तो लास्ट 5 मिनट्स में मैं ज्वाइन हुआ था एंड यस मैम, ओके, अटेंडेंस के टाइम ही मैं ज्वाइन हुआ था। सो ये मुझे पता चलता है कि कौन कितने टाइम के लिए प्रेजेंट था। नेटवर्क इशू है, कुछ भी है, वो मैं देखूंगी, ठीक है। हर रोज किसी का नेटवर्क इशू आ रहा है तो आई विल नॉट कंसिडर। सो जो ऑटोमेटिक अटेंडेंस डाउनलोड होती है उसमें एक स्टूडेंट्स कितनी बार इन किया मीटिंग में, कितनी बार एक स्टूडेंट ने लेफ्ट किया वो भी दिखता है, एंड फॉर हाउ मच टाइम ही वॉज इन द लेक्चर वो भी पता चलता है, ठीक है। एंड ये सारी चीजें छोड़कर मुझे पढ़ना है, इसके लिए मैं ज्वाइन हो रहा हूँ, लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ, ये ध्यान में रखो, ठीक है। नाउ आई विल स्टार्ट द एक्चुअल सिलेबस। So we have started unit number 1.
Is it visible? Screen is visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. ठीक है. So we have started unit number 1, that is the electromagnetism. Just I will revise the previous things. We have covered the basic definitions, that is the resistance, EMF, electric potential, potential difference, then Ohm's law, magnetic effect of electric current, then cross and dot conventions, right hand thumb rule, nature of magnetic field of solenoid and magnetic field of toroid. This much part is completed. Fine. Now next part is the actual start of the magnetic circuit. So the MMF, flux density, reluctance, permeability, field strength and their units and relationship. ये देखते हैं हम, ठीक है. Now, what is meant by MMF? In case of electric circuit, there is a EMF, electromotive force. Like that, in case of magnetic circuit, there is a magnetomotive force, MMF. Okay. So, what is this MMF? Now, compare the definition with EMF. Okay. In case of EMF, how you are going to define the EMF? The electrical efforts required to drift the electron or to push the electron in a electrical circuit. Correct. Now what is the EMF? It is stands for magnetomotive force. Okay. The current flowing in the electric circuit is due to existence of electromotive force. Similarly, magnetomotive force is required, or it is defined as the force which is required to drive the magnetic flux in magnetic circuit. Okay, the magnetic pressure which set up the magnetic flux in a magnetic circuit is called as magnetomotive force. ठीक है, ये लास्ट सेंटेंस आप डेफिनेशन एज अ डेफिनेशन कंसिडर कर सकते हो. व्हाट इज मैग्नेटोमोटिव फोर्स? द मैग्नेटिक प्रेशर व्हिच सेटअप्स द मैग्नेटिक फ्लक्स इन मैग्नेटिक सर्किट इज नोन एज और इज कॉल्ड एज मैग्नेटोमोटिव फोर्स और एमएमएफ. ठीक है, एंड द फॉर्मूला फॉर एमएमएफ इज N into I, number of turns into current flowing through that coil. Okay, so this is the कोर. ऑन दैट कोर, ये जो रेड कलर का है पार्ट है उसको कोर बोलते हैं. कौन से भी मटेरियल का वो पीस रहेगा, मैग्नेटिक मटेरियल का. एंड ऑन दैट कोर, CORE, कोर. ओके, ऑन दैट कोर वन कॉइल इज वाउंड. ठीक है, एक कॉइल उसके ऊपर वाउंड की है एंड करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल. ठीक है, एंड व्हेनेवर करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल, बिकॉज ऑफ एमएमएफ, बिकॉज ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स, फ्लक्स गेट डेवलप्ड and at that time one end will act as a n pole and other end will act as a s pole. ठीक है, and if the number of conductors or turns, in this case as it is a coil, you can call it as a number of turns. ठीक है, number of turns, and I is the current flowing through this coil in amperes. So the unit of this MMF is ampere turns. N का turns and I का ampere. Is it correct, MMF? Is it clear? Getting or not? Please reply. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes, okay, ma'am. okay. Yes, Next, flux. How will you define the flux? Flux is defined as, ये सारी चीजें आपने 12th standard में define की थी. Then also we are repeating. Flux is defined as the number of field lines passing through a given closed surface. Number of field lines. Now all of you know that flux means what? Flux is nothing but the magnetic lines which are invisible. Okay, is it correct na? Those are invisible. क्या किसी ने देखे हैं मैग्नेटिक लाइन्स? नहीं ना, कोणी पाहिल्यात का? नहीं. No, ma'am. No. So flux is defined as the number of field lines passing through a given closed surface. It gives the measurement of total field that passes through a given surface area. Okay. So ये flux lines क्या represent करती है रे? These flux lines represents how much amount of field is there or how much amount of
magnetic field is there in given surface area. The notation of flux is phi. ओके ये जो नोटेशन है इसको phi बोलते हैं. And the unit of the flux is Weber. Unit of flux is Weber. ठीक है. Now please tell me what is the magnetic flux density. How will you define the magnetic flux density? कौन बताएगा? मैम हाँ बोला. number of field lines passing through given close passing through per unit area. Passing through Per unit area. per unit area. Very good, very good. Some students are not able to join the class. कुठे मला कोणी दिसत नाहीये जॉइन होताना. ओके वेट करूया आपण 5 मिनिट. हे बघा जर 10चं लेक्चर असेल ना 10 तर 10लाच जॉईन व्हायचं. 11चं लेक्चर आहे तर पटकन 11लाच जॉईन व्हायचं. लिंक तुम्हाला 5 मिनिट आधी आलेली असते कारण एकदा मी दुसऱ्या स्क्रीनवरती गेली की इथं ऑटोमॅटिक जॉईन व्हायला प्रॉब्लेम होतो म्हणून. ठीक आहे. आता दिसतेय का स्क्रीन दिसतेय का रे? पीपीटी दिसतायत ना. हा ओके. हा सो डेफिनेशन रोल नंबर 3 ने दिलेली आहे. बरोबर दिलेले. फ्लक्स डेन्सिटी. द फ्लक्स डेन्सिटी इज द नंबर ऑफ मॅग्नेटिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स that passes through a certain point on a surface, or you can say the flux density is the flux per unit area perpendicular to the field. Flux per unit area. ठीक है. So this is all about the flux density. So what will be the formula? मैंने यहाँ पे formula नहीं लिखा है. Flux density का formula क्या रहेगा बताओ? B is equal to, उसका notation तो B है. डेफिनेशन तो बताया फ्लक्स पर यूनिट एरिया. डेफिनेशन इज फ्लक्स पर युनिट एरिया. त्याच्यावरूनच फॉर्म्युला येणार ना. सांगा बरं. पर युनिट म्हणजे रिप्लाय. हा phi upon a. व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड. phi upon a. फ्लक्स पर युनिट एरिया. सो फ्लक्स इज phi. Per unit area means a. So phi divided by a. So the unit of the flux density B is Tesla. The unit of flux density is Tesla, or by using phi upon a you can write B is equal to phi by a. Phi का unit Weber, area का meter square. So Weber per meter square. Now listen all of you. स्टार्टिंग से ही हम क्या करेंगे, जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो नोट डाउन करेंगे. ठीक है. सो यहीं पे हमारा स्टार्ट हुआ है यूनिट, एक्चुअल यूनिट. सो आई थिंक मैं कंसिडर करती हूँ कि सबके पास पेन एंड नोटबुक है. नोट डाउन द फर्स्ट फॉर्मूला. MMF इज इक्वल टू F इज इक्वल टू N इंटू I. राइट डाउन फास्ट. मैं कंसिडर करती हूँ कि सबके पास यूनिट होने के बाद फॉर्मूले लिस्ट आउट करने से अच्छा है कि जैसे हमारा यूनिट शुरू है वैसे फॉर्मूले लिस्ट आउट करो. कंप्लीटेड. फर्स्ट फॉर्मूला लिखा क्या? बिकॉज थोड़ा पार्ट होने के बाद, थोड़ा पार्ट कंप्लीट होने के बाद आई विल टेक द न्यूमेरिकल, एंड टू टेक द न्यूमेरिकल आपके पास फॉर्मूले चाहिए. तो नोटबुक के पीछे यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 1 के फॉर्मूले. ठीक है. ऐसे एक साथ लिखो. फॉर्मूला एक बार रिपीट करो ना. MMF स्क्रीन पे दिख रहा है ना. MMF इज इक्वल टू F. FM भी लिख सकते हो और F भी लिख सकते हो. कैपिटल F इज इक्वल टू N इंटू I. N कैपिटल N इंटू I. where N is equal to डिटेल्स भी लिखो. हाँ उसके, नहीं तो n क्या है ये फिर पता नहीं चलेगा. n is equal to नंबर ऑफ कंडक्टर्स और टर्न्स. n is equal to नंबर ऑफ कंडक्टर्स और टर्न्स, एंड I is equal to current in amperes, and I is equal to current in amperes. Therefore MMF is equal to ampere turns unit. N into I ampere turns. Completed. Shall I move forward?
यस मैम। ओके, नेक्स्ट इज द फ्लक्स। ठीक है, अभी फ्लक्स के लिए सेपरेट फॉर्मूला नहीं, लेकिन उसका यूनिट लिखो, वेबर, ध्यान में रखो, वेबर। नेक्स्ट, फ्लक्स डेंसिटी बी, राइट डाउन द फॉर्मूला। आप जब कॉलेज में आओगे, आई विल चेक द नोटबुक ऑफ एवरी स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूलेज है क्या नहीं है, एंड दिस इज यूजफुल फॉर यू पीपल ओनली, मेरे लिए नहीं है कुछ ये। मैं नोटबुक चेक करूंगी, पनिशमेंट दूंगी अगर किसी का नहीं है तो, लेकिन जो आज से फर्स्ट लेक्चर से ही लिखेगा, प्रैक्टिस करेगा, उसका ही बेनिफिट है। देयरफॉर यू हैव टू राइट फ्लक्स डेंसिटी बी, सेकंड थर्ड फॉर्मूला, फ्लक्स डेंसिटी बी इज इक्वल टू phi divided by a, phi divided by a. Completed? यस मैम। Okay. Unit Tesla, Tesla or Weber per meter square. Tesla or Weber per meter square. Completed? मैम Hmm? मैम वो टेस्ला इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर है ना Yes, Tesla and Weber per meter square. मैम? एंड Both एक are ही वो same. मैम वो Yes, yes, टेस्ला। equal, equal, equal. हाँ ओके। हाँ, टेस्ला इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर, दोनों यूनिट का मतलब सेम ही, कौन सा भी यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज द रिलक्टेंस। अप टू फ्लक्स डेंसिटी एवरीवन कंप्लीटेड, एनी डाउट? नो मैम। ठीक है, रिलक्टेंस। नाउ ऑल ऑफ यू नो दैट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द रेजिस्टेंस। इज इट करेक्ट? Opposition to the flow of current is the resistance. Same like that, in case of magnetic circuit, opposition to the flow of magnetic flux is known as the reluctance. Clear? Very simple definition. Opposition to the flow of magnetic flux is known as the reluctance. Clear? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, नाउ आप लोगों ने मुझे बेसिक फॉर्मूला बताया था रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, बताया था ना, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। यस मैम। ठीक है, सो सिमिलरली रिलक्टेंस के लिए हम फॉर्मूला निकालेंगे। S जैसे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया था, सेम लाइक दैट रिलक्टेंस व्हिच इज डिनोटेड बाय S is directly proportional to length and inversely proportional to cross sectional area. S is directly proportional to length and inversely proportional to cross sectional area. ठीक है, in case of electrical circuit R is equal to rho L by A था, rho is a constant. Okay, rho is a constant or you can call it as a resistivity or specific resistance. Correct? So in this case we are going to take the constant which is k, capital K. So S is equal to KL by A. क्या हो गया? S is equal to KL by A, where the K is the constant and it is the reciprocal of absolute permeability. It is the reciprocal of absolute permeability. Now what is this permeability? इसके बाद आएगा। ठीक है, तब तक ध्यान में रखो। सो एस के लिए फॉर्मूला होगा, अगर के इज रेसिप्रोकल ऑफ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, दैट इज द म्यू, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी इज द म्यू, सो एल डिवाइडेड बाय, ये फॉर्मूला हम मॉडिफाई कर रहे, एल डिवाइडेड बाय म्यू इनटू ए, के इज 1 डिवाइडेड बाय म्यू पुट किया, सो एल डिवाइडेड बाय म्यू इनटू ए, बट म्यू इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ म्यू जीरो एंड म्यू आर। अब ये कैसे आया मैं बताऊंगी। ठीक है, L डिवाइडेड बाय म्यू जीरो इंटू म्यू आर इंटू ए। क्लियर? रिलक्टेंस का फॉर्मूला, इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, लिख Yes, लो ये ma'am. फॉर्मूला, लिख के लो रिलक्टन्स, एकदम छान व्यवस्थित लिहा फॉर्म्युले, स्वतःला परत अभ्यास करताना वाचू वाटले पाहिजेत असे, राइट इट नीट एंड प्रॉपर। S is equal to KL by A, write down S is equal to
KL by A, where K is constant, where K is constant, and it is the reciprocal of absolute permeability. And it is the reciprocal of absolute permeability. Therefore, S is equal to, L divided by mu A. L Hi, ma'am. divided. Huh? Yes. Is that L by A or is that 1 by A? L. This is L. L I by thought it was 1, A. ma'am. Okay. In the PowerPoint presentation, जहां से फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं ना, वहां पे ऐसे ही आ रहा था L. ठीक है. Write it properly. Don't get confused. L ही है वो. Reluctance is directly proportional to length L, and reluctance is inversely proportional to area of cross section. Correct? So, हेलो मैम. yes. मैम ये जो नोट्स है वो गूगल क्लासरूम पे आएंगे क्या? Yes, these notes will be provided, but what I am saying, you don't write definitions and all things, but what happens in electrical, we have to solve the maximum numericals, and for those numericals from every unit we have to list out the formulas. Correct? So what I Yes, am ma'am. saying कि अभी जो जैसे हमारा एक एक पॉइंट शुरू हुए वैसे एक एक ये फॉर्मूला लिख के लो, है ना? यस मैम. बट मैम हाँ. मेरा क्लास जो गूगल रूम में वो स्टोर नहीं हो रहा मैम एक्चुअली. ठीक है, मैं वो लेक्चर के बाद बताती हूँ. ठीक है, वो चेक करेंगे. अभी तो फॉर्मूले लिस्ट आउट करो, क्योंकि क्या होता है, हम बोलते हैं अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, तो बाद में फिर लोड आ जाता है. ओके, धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट का सिलेबस थोड़े थोड़े आगे जाएगा, तो हर एक सब्जेक्ट का जैसे ही लेक्चर में जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो. सो आई थिंक एस का फॉर्मूला हो गया. Yes, ma'am. यस मैम. ठीक है. नेक्स्ट, एज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ओके, रेजिस्टेंस के दो फॉर्मूला थे. एक एस आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए था, लाइक दैट. यहाँ पे रिलक्टेंस का भी ये हो गया, के एल बाय ए हो गया. नेक्स्ट, रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? V by I. Is it correct? Resistance is equal to V by I. It is visible on the screen also. ठीक है. So as in electrical circuit, resistance is the ratio of EMF and the current, EMF or voltage. Okay, so in magnetic circuit, the reluctance can be expressed as the ratio of magnetomotive force, MMF, to the flux. ठीक है. In electrical circuit there is a resistance, in magnetic circuit there is a reluctance. In electrical circuit there is a EMF, in magnetic circuit there is a MMF. In electrical circuit there is a current, in magnetic circuit there is a flux. So if you write resistance is equal to EMF or voltage divided by current, then for reluctance you can write MMF divided by flux. Correct? MMF divided by flux. But MMF is equal to what? N into I, and flux is equal to phi. So S is equal to, formula हो गया NI divided by phi. So another formula for reluctance is MMF divided by flux, that is NI by phi. Is it correct? Clear? Reply. Clear. Yes, ma'am. ठीक है. Write down this formula also. S is equal to NI divided by phi. S is equal to NI divided by phi. I think all of you have written this. No ma'am, wait 1 minute. Okay, fast लिखो. दो फॉर्मूले रिलक्टेंस के, एक है S is equal to L divided by mu 0 mu r into A, and second is S is equal to NI divided by phi. Written ma'am. Okay. Next, okay, one more thing. Now tell me, resistance is opposition to the flow of flux. ठीक है.
व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस? क्या बोलते हैं उसको? रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को कौन बताएगा? कंडक्टिविटी. नो. हे बघा, थोड़ा टेक्स्ट से ध्यान में रखो. इफ इट इज कंडक्टिविटी देन किसका किसका रेसिप्रोकल होगा? वो रेजिस्टिविटी का. एंड इफ इट इज अ कंडक्टेंस देन it will be a reciprocal of resistance. Correct? Conductivity different, conductance different, resistivity different, resistance different. समझ में आया? रेजिस्टेंस. सॉरी, ओके मैम. हेलो, ठीक है. सो conductance is the reciprocal of resistance. So resistance is opposition, conductance क्या करेगा? करंट फ्लो होने के लिए हेल्प करेगा. रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? ऑपोज कर रहा है. तो कंडक्टेंस क्या करेगा? हेल्प करेगा करंट फ्लो होने के लिए. एंड रेजिस्टिविटी इज आल्सो ऑपोजिशन एंड कंडक्टिविटी मींस द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द फ्लो ऑफ करंट इन एनी मटेरियल. सो रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी इज डिफरेंट एंड रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस ये दो टर्म्स एक साथ, एंड रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ये दो टर्म एक साथ. सो लाइक दिस the reciprocal of reluctance is known as permeance. Reciprocal of reluctance is known as the permeance. So how will you define the permeance? The permeance of magnetic circuit is defined as the reciprocal of reluctance. ठीक है? Reluctance is opposition. Reluctance क्या करता है? Opposition. तो permeance क्या करेगा रे? Flux flow होने के लिए help करेगा. So another definition is it is the property of magnetic circuit. Now we are studying the magnetic circuit. ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं है. सो डेफिनेशन में क्या आना चाहिए? मैग्नेटिक सर्किट. It is the property of magnetic circuit due to which it allows the flow of magnetic flux through it. Due to which it allows the flow of magnetic flux through it. Correct? Clear? Any doubt? नो मैम. ठीक है. No, ma'am. परमियंस का फॉर्मूला लिखो. परमियंस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय S और 1 डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस. परमियंस इज इक्वल टू, फास्ट नोट डाउन, 1 डिवाइडेड बाय S और 1 डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस. ठीक है. Now next term is the permeability. परमेबिलिटी. ठीक है, आपने परमेबिलिटी 12th में पढ़ा है ना? परमेबिलिटी ये टर्म, हेलो, है ना? एक परमेबिलिटी था और एक परमिटिविटी था. परमिटिविटी. हाँ, तो परमिटिविटी कहाँ पे आता है रे? एप्सिलॉन ना? एप्सिलॉन. एप्सिलॉन नॉट. यस. हाँ, Electromagnetism. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. Statics. Yeah, Sorry. yeah, and electrostatics, that means our next unit. So electrostatics में epsilon आएगा, permittivity, and electromagnetism में क्या आता है? permeability आता है, mu आता है. ठीक है. So don't get confused in both terms. So the permeability is the property of material which allows the magnetic lines of force to pass through it. ठीक है, this is one of the property and due to which there is a flow of flux line through that material. The magnetic permeability of material is directly proportional to number of lines passing through it and it is denoted by mu. ठीक है, तो permeability का नोटेशन है mu. इसका यूनिट है हेनरी पर मीटर. यूनिट इज हेनरी पर मीटर और न्यूटन्स पर एम्पियर स्क्वायर. कौन सा भी एक ध्यान में रखो. नेक्स्ट, द परमेबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू जीरो. ठीक है, ऑल ऑफ यू नो दैट. परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये टर्म भी आपने 12th में सुना है. परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर और वैक्यूम, इट इज डिनोटेड बाय म्यू जीरो एंड इट्स वैल्यू इज ऑलवेज फिक्स, दैट इज द 4 पाई इंटू 10 टू द. ओके, ये यहाँ पे गलत हुआ है. 4 पाई इंटू क्या रहता है रे? कैन एनीवन टेल मी म्यू की वैल्यू? म्यू जीरो की वैल्यू क्या रहती है?
हेलो, रिप्लाई स्टूडेंट्स। I'm 10 raised to minus 7, I think. 4 to 10 raised to minus 7. 10 raised to 10 raised to minus minus 7. 7. यस, 10 रेज टू माइनस 7। यहाँ पे मेरा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इज द वैल्यू ऑफ म्यू जीरो। मीन्स कौन सा भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, अगर वहां पे म्यू जीरो की वैल्यू नहीं दी है, फिर भी आपको पता चाहिए कि म्यू जीरो इज ऑलवेज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 हेनरी पर मीटर। It is expressed by the formula mu is equal to B by H. Mu is equal to B by H. So what is B? B is the magnetic flux density and H is the magnetic field strength, or it is also called as magnetic field intensity, or it is also called as the magnetic field intensity. Write down formula mu is equal to B divided by H. डोंट वेट फॉर माई इंस्ट्रक्शंस। अगर आपको फॉर्मूला दिखता है तो तुरंत आपको लिखना है परमेबिलिटी इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय एच। कंप्लीटेड? Yes, ma'am. ओके, यूनिट भी लिखो, हेनरी पर मीटर। शॉर्ट फॉर्म मत लिखो, लॉन्ग फॉर्म लिखो, तभी आपको बाद में पढ़ते वक्त समझ में आएगा। हेनरी पर मीटर, ठीक है। So in case of permeability we have to study 3 terms. एक है only permeability, second है permeability of free space that is the mu zero, and third है relative permeability that is the mu r. Okay, see I will repeat again. Permeability that is only mu, permeability of free space that is the mu zero, and relative permeability that is the mu r. So permeability की definition हो गई। then permeability of free space means क्या है ये भी पता है आपको। now we will see what is the relative permeability. So the relative permeability is the ratio of B divided by B0. ठीक है, ratio of B divided by B0. Okay, listen, now up to 12th standard I think all of you are all definition हो कुछ भी हो आप मगअप करते होंगे, ठीक आहे। मराठीमध्ये त्याला काय म्हणतात रे, पाठ करणे, बरोबर। नाउ फ्रॉम इंजिनियरिंग, फर्स्ट ईयर इंजिनियरिंग, डोंट मगअप एनीथिंग, ओके। बाय टैक्ट, बाय फॉर्मूला यू हैव टू रिमाइंड, ओके। समझ के लेना है और आपको रिमाइंड करना है। अगर आप मगअप करोगे तो आप जब एग्जाम में लिखने जाते हो, अगर एक भी वर्ड आप भूल जाते हो तो पूरी डेफिनेशन आप भूल जाते हो। सो डोंट मग अप एनीथिंग, ठीक है। लिसन, हाउ टू रिमेंबर दिस रिलेटिव परमेबिलिटी डेफिनेशन। म्यू आर इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय बी जीरो। नाउ ऑल ऑफ यू नो दैट बी इज नथिंग बट व्हाट इज बी? फ्लक्स डेंसिटी, करेक्ट। B is the flux density, and what is B0? B0 is also flux density, but whenever it is a zero, that time you have to write it is the flux density for the free space, flux density measured in a free space. So mu r, that is the relative permeability, is the ratio of flux density to the flux density of free space, correct? Very simple definition. Is it simple or not? Dear friends, dear students, is it Yes, simple or not? Yes, ma'am. Okay. Now see, यहाँ पे क्या लिखी है वो देखती हूँ मैं अभी। The relative permeability is defined as the ratio of flux density produced in any medium. Correct? B है तो वो कौन सा तो मीडियम होगा other than a free space. ठीक है, वो फ्री स्पेस नहीं चाहिए और एयर नहीं चाहिए, कौन सा भी दूसरा मीडियम चाहिए, लिक्विड हो, कौन सा भी मटेरियल हो, ऐसे मीडियम चाहिए। टू, द फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस्ड इन अ फ्री स्पेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड आइडेंटिकल कंडीशन। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखो, ये लास्ट जो वर्ड से यू हैव टू कीप इन माइंड, बिकॉज सपोज मैंने कौन सा भी एक मटेरियल लिया, ठीक है, एंड उस वहां पे सेम करंट दिया, ठीक है, सेम करंट प्रोवाइड किया, एंड मैंने क्या किया वहां पे बी मेजर किया, ठीक है। वो सेम सेटअप जो है, वो सेम सेटअप मैंने एयर में और फ्री स्पेस में रखा,
ठीक है, करंट उतना ही दिया मैंने, ठीक है, एंड वहां पे फिर से बी मेजर किया तो वो आ गया B0। तो कंडीशन क्या चाहिए, दोनों के लिए सेम चाहिए, सिर्फ एक के लिए मीडियम चाहिए कौन सा भी, और दूसरे के लिए मीडियम चाहिए वैक्यूम और फ्री स्पेस। ठीक है, सो देयरफॉर द लास्ट वर्ड इज इंपॉर्टेंट कि it is the ratio of the permeability, it is the ratio of flux density in any medium to the flux density in free space under the influence of same magnetic field strength or identical conditions, correct? So ये हो गया mu r is equal to b by b0। now next परमेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है रे, म्यू इज इक्वल टू बी बाय एच। परमेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, लास्ट ये में देखा है हमने, म्यू इज इक्वल टू बी बाय एच। सो म्यू जीरो के लिए क्या होगा रे, वहां पे बी जीरो, यस बी जीरो होगा, बट एच रिमेन्स सेम, एच इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड हमें वो क्या चाहिए रे, इट शुड बी आइडेंटिकल। सो फॉर फ्री स्पेस म्यू जीरो इज इक्वल टू बी जीरो बाय एच हो गया, ठीक है, B0 by H हो गया। टेक द रेशियो ऑफ दिस टू इक्वेशन, म्यू डिवाइडेड बाय म्यू जीरो इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाय B0, बट B डिवाइडेड बाय B0 इज नथिंग बट इदी म्यू आर, करेक्ट? सो B डिवाइडेड बाय B0 मैंने पुट किया म्यू आर, सो you will get mu divided by mu 0 is equal to mu r. So you can write the mu is equal to mu 0 into mu r, means permeability is equal to the product of permeability of free space into permeability into relative permeability. Clear? मैंने यहाँ पे आपको बताया था, देखो S इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू इंटू ए आया था, एंड म्यू की जगह मैंने क्या लिखा, म्यू जीरो इंटू म्यू आर। तो मैंने बताया था कि आई विल टेल यू और आई विल एक्सप्लेन यू लेटर हाउ इट कम्स। सो यहाँ पे ये म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू म्यू आर आया। क्लियर? यस मैम। एनी डाउट? अगर किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो। हाँ बोलो। हम रिपीट करो एक बार। रिपीट करो, ओके ठीक है। Relative permeability, first relative permeability means it is the ratio of flux density in any medium to the flux density in free space with same magnetic conditions। ठीक है, ये रेशियो हो गया रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव मीन्स व्हाट, एनी दोनों का कंपैरिजन, रिलेटिव। सो ये हो गया दोनों का कंपैरिजन हो गया, सो बी डिवाइडेड बाय बी जीरो आ गया। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, ये रिलेटिव हो गई। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी मींस ये एब्सोल्यूट परमेबिलिटी के डेफिनेशन से म्यू का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, बी बाय एच। तो मैंने यहाँ पे म्यू का फॉर्मूला लिखा बी बाय एच। सो बी मीन्स एंड एच मीन्स कौन से भी मीडियम में मैंने जो मेजर किए वैल्यू, वो वैल्यू। सो बी बाय एच। नेक्स्ट, सपोज मैंने क्या किया, फ्री स्पेस में वैल्यूज मेजर किए, तो फ्री स्पेस के लिए म्यू क्या हो जाएगा, म्यू जीरो हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, बी जीरो हो जाएगा, बट एच remains same, magnetic field strength remains same, H is the magnetic field strength or magnetic field intensity remains same, it doesn't change। नेक्स्ट, इक्वेशन 1 एंड 2 को मैंने क्या किया, उसका रेशियो लिया। सो म्यू बाय म्यू जीरो आएगा और इज इक्वल टू बी बाय बी जीरो आएगा, एंड एच इज अ कॉमन, सो इट विल गेट कैंसल, एच गेट कैंसल। बट बी बाय बी जीरो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है, बी बाय बी जीरो इज द रिलेटिव परमेबिलिटी, बी बाय बी जीरो इज द रिलेटिव परमेबिलिटी, दैट इज द म्यू आर। मैंने वो यहाँ पे पुट किया, हो गया म्यू बाय म्यू जीरो इज इक्वल टू म्यू आर, और रीअरेंज करके म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू म्यू आर, करेक्ट? क्लियर? यस मैम। क्लियर? Yes, yes, ma'am. ओके, नाउ वन मोर थिंग, यहाँ पे म्यू जीरो का वैल्यू है 4.10 टू द पावर -7 हेनरी पर मीटर, करेक्ट? म्यू जीरो का, और म्यू का भी यूनिट क्या बताया मैंने, हेनरी पर मीटर ही बताया। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल m चाहिए। What will be the unit of this mu r? रिलेटिव परमेबिलिटी का यूनिट क्या रहेगा रे? रिलेटिव परमेबिलिटी का यूनिट क्या रहेगा? No unit. वेरी गुड, बरोबर है का रे? इज इट करेक्ट? इट विल बी यूनिट लेस क्वांटिटी,
प्लीज रिप्लाई एवरीवन। यस यस अगर आप देखो, अगर आपको Yes, समझ ma'am. में नहीं, यस इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। व्हाई? बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज बी एंड बी जीरो, बोथ आर सेम। इसका भी यूनिट टेस्ला रहेगा, इसका भी यूनिट टेस्ला ही रहेगा। सो टेस्ला टेस्ला विल गेट कैंसल एंड रिलेटिव परमेबिलिटी विल नॉट हैव एनी यूनिट। Only permeability and permeability of free space, these two quantities will be having the unit, and that is the Henry per meter. Clear? Don't forget all these things. Yes, ma'am. ठीक है, write down third formula, mu is equal to mu zero into mu r. Write down next formula, mu is equal to mu zero into mu r. मैम ये पूरा लिखना है कि जो आपने डिस्क्राइब किया ये भी लिखना है? नहीं नहीं नहीं, don't write this description, just write this mu r is equal to b by b zero and mu is equal to last, this first formula and this last formula, because whenever I am going to share the PPTs at that time you have to learn this description. ओके मैम। जस्ट वी आर लिस्टिंग आउट दी फॉर्मूलाज, हम फॉर्मूले लिस्ट आउट कर रहे हैं, तो ये एक फर्स्ट फॉर्मूला लिखो एंड ये लास्ट फॉर्मूला एक लिखो, ठीक है? और Okay, ये जो एंड फर्स्ट फॉर्मूला जो है उसके सामने लिखो इट इज यूनिटलेस, डोंट हैव एनी यूनिट। ओके, शैल वी मूव फॉरवर्ड? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. नेक्स्ट पॉइंट। ये फील्ड स्ट्रेंथ अभी मैंने बताया था, जो H है हर जगह जो आपको H दिख रहा है उसको फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। द फील्ड स्ट्रेंथ दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर वैल्यूड फील्ड। फॉर एग्जांपल, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रिजल्ट्स इन बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, or the field strength corresponds to the density of field lines. Means magnetic field strength is nothing but the total number of magnetic lines. जितने लाइन्स है उनकी अगर टोटल करते हो दैट इज नथिंग बट उस एरिया में कितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है? इसके बारे में इतना कुछ नहीं है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक सर्किट। Now we will come towards now we have covered almost all concepts related to the magnetic circuit. MMF क्या है, फ्लक्स क्या है, रिलक्टेंस क्या है, परमियंस क्या है, everything has been completed. Now next we will move towards the magnetic circuit. बाद में next we will move towards the magnetic circuit. First tell me, how will you define the electrical circuit? How will you define the electrical circuit? Electrical circuit कैसे define करते हो बताओ? मैम, Loudly, any loop through which current passes. any loop through which current passes. passes. Correct. That means, or in another words, you can say the closed circuit through which current flows, right? And current flow होने के लिए closed ही circuit चाहिए, correct ना? Yes ma'am. Now magnetic circuit. The magnetic circuit can be defined as the closed path traced by magnetic lines of force, or you can call it as a flux. The closed path traced by the magnetic lines of force, that is the flux. So here is the simple magnetic circuit. If you observe, this square is called as the core. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं, मीन कोर लेंथ LC, ठीक है, इसको कोर बोलते हैं। नेक्स्ट, on that core on one side there is a one coil with n number of turns. On one side there is a one coil with n number of turns and it is carrying the current of I amperes. It is carrying the current of I amperes. Whenever current is flowing at that time, there is a flow of flux, there is a setup of flux, and that flux flow through this path. That flux flows through this path, that is called as the magnetic flux or magnetic lines of force. Next, mean length of core means इसकी जो length होगी that is called as LC. LC, C for core. इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ पे दिखाया है, देखो, सो AC, ठीक है? हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ, ये सारी चीजें लगती है बाद में। देयरफॉर यही सर्किट, इसी सर्किट में देख लो कहाँ पे हम लेंथ मेजर करते हैं, कहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया देखते हैं। नेक्स्ट,
मैग्नेटिक कोर, ये मैग्नेटिक कोर है एंड उसकी सपोज परमेबिलिटी कितनी है, म्यू है, ठीक है। सो दीज आर ऑल टर्म्स रिलेटेड टू दिस मैग्नेटिक सर्किट। करंट आई, टर्न्स एन, मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, फाई, यहाँ पे फाई नहीं लिखा है, ठीक है, फाई, लेंथ एल सी, सी फॉर कोर, लेंथ एल सी, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए सी, सी फॉर कोर, एंड परमेबिलिटी ऑफ दिस मैग्नेटिक कोर इज म्यू। क्लियर? मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट में किसी मैम को कुछ डाउट? हाँ, यस। मैम वो लैम्डा वेवलेंथ है क्या वहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, वेवलेंथ नहीं, ये लैम्बडा वेवलेंथ नहीं, ठीक है। लैम्बडा क्यू है लिखा है यहाँ पे, लैम्बडा आई थिंक दिस रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, उसका नोटेशन आई थिंक लैम्बडा है, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड है ना ओके डेंसिटी बी, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेंसिटी है ना उसका यूनिट आई थिंक लैम्बडा है। ओके, मैं बाद में देख के बताती हूँ, ओके मैम। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कितना टाइम बाकी है? ओके, आई थिंक टाइम ओवर। नेक्स्ट पॉइंट आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर। प्लीज टेल मी एनी डाउट इन टुडेज लेक्चर, समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है? यस मैम। ठीक है, फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है? नो मैम, सही है। मैम ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स कैसे देखना है? हाँ, अभी देखो मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं उसकी लिंक पे आपको ग्रुप पे प्रोवाइड करती हूँ, उसके ऊपर मैं लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 ऐसे डालूंगी, ठीक है, अपलोड मैम करूंगी। ये आप गूगल क्लासरूम पे भी डालोगे ना? नहीं, गूगल क्लासरूम पे ये अपलोड होने में टाइम लगता है, ये मैं यूट्यूब पे डालूंगी, ठीक है। यस मैम, यूट्यूब जो पे। हाँ, जो वीडियोस होंगे वो यूट्यूब पे आएंगे, एंड जो ये रहेंगे, क्या बोलते हैं, नोट्स वगैरह रहेंगे, असाइनमेंट्स रहेंगे, क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे, वो सारे चीजें इसके ऊपर आएंगे, गूगल क्लासरूम के ऊपर, क्लासरूम, ओके ठीक है। मैडम गूगल हाँ, क्लासरूम कोड। वेट 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 बेटा, एंटायर स्क्रीन, इज इट विजिबल? द No. स्क्रीन इज विजिबल? No. यस मैम। Yes, yes. यस मैम। FE सिविल डिवीजन बी, ठीक है। 39 स्टूडेंट्स हैव ज्वाइन, ठीक है। ये देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ज्वाइन थ्रू दिस FE सिविल B21 हर्षल लोंडे, लाइक दिस एवरीवन ट्राई टू ज्वाइन। रोहन पाटिल, चेंज योर नेम लाइक दिस ओनली, रोल नंबर डिवीजन, तो इजी होता है आपके पेपर्स असेस करने के लिए, असाइनमेंट वगैरह असेस करने के लिए, ये इजी होता है। अजय धोत्रे, यू ऑल्सो चेंज योर नेम अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस, आपका FE सिविल रोल नंबर एंड उसके बाद आपका नाम डालो, ठीक है। नाउ आपको चाहिए कोड ना बेटा, सी दिख रहा है क्या कोड? Yes, ma'am. ज्वाइन फास्ट, थैंक यू मैम। ठीक है, सारे सारे लोग ज्वाइन करो पट पट फास्ट। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। मैम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हो? कौन सा, किस चीज का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन? यूनिट 1 के लिए। अच्छा देखो, यूनिट 1 और 2, अभी देखो आपका एग्जाम पैटर्न अभी तक इन सेम एंड सेम, जो प्रीवियस पैटर्न है, अकॉर्डिंग टू दैट पैटर्न यूनिट 1 एंड 2 पे इन सेम होती है, ठीक है। सो वो इन सेम 30 मार्क्स की रहती है, तो यूनिट 1 के लिए 15 एंड यूनिट 2 के लिए 15 मार्क्स रहते हैं, ठीक है। ओके मैम। हाँ, लेकिन अभी तक आपका आप बिकॉज ऑफ दिस कोरोना आपका ये पैटर्न कुछ चेंज होगा इस साल के लिए, वो पता नहीं है ना हमें, यस मैम, यस मैम। ठीक है। हो गया ये कॉपी Yes, ऑफ ma'am. यू, ठीक है। Yes, ma'am. वन मोर थिंग, सम स्टूडेंट्स हैव जॉइन द लेट, अभी मुझे पता चला कुछ लोग अभी ज्वाइन हो गए, लेकिन मैं फिर एक बार आपको बताती हूँ कि whenever I am going to stop this meeting, मैं जब ये मीटिंग स्टॉप करती हूँ तो ऑटोमेटिक अटेंडेंस रिकॉर्ड होती है, एंड वो उस अटेंडेंस में मुझे कौन स्टूडेंट कितने टाइम के लिए प्रेजेंट था वो दिखता है मुझे। बाद में मत बोलो कि आई वॉज प्रेजेंट फॉर होल लेक्चर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो रिकॉर्ड होता है दैट इज नॉट अ फेक,
ठीक है. Now I will mark the attendance manually. Don't leave the meeting. Roll number 1, Present, ma'am. 2, Present, 2, ma'am. 3, 4, Present. 5, Present. 6. Roll number मैम 6. मैम हम लेफ्ट से Sorry. हम रोल नंबर 1 मैम लेफ्ट हो जाए हम लोग लेफ्ट हम चले हाँ जाए. हाँ हाँ, जिनका हुआ वो लेफ्ट करे. यस यस करे. हाँ, कहाँ तक आई थी? 5, 6. रोल नंबर 6. Absent. 7, Present, ma'am. 8, 8, 8 absent. 9, 6 absent, 8 absent. 9, 9. Ajay, what is your roll number? 10 10 10. Okay, 9, 10 present. Okay, 11, 11, Present, ma'am. Present. 12, 12, 13, Present. 15, 14, Present, ma'am. 15, 15, 16, Present, ma'am. 16, loudly. Present, ma'am. Present. 17, Present, ma'am. 18, 18, 19, Present. 20, 20, 21, 22, 23, Present, ma'am. 24, 24, 25. Present, ma'am. अंकुर, प्रेझेंट मॅम 24. काय करत होतास 24 एवढा वेळ? मॅम ते माईक ऑफ होत ऑन होत नव्हतं. 25 also present. वरुण Present. अंकुर Ankur, अंकुर Ankur. अंकुर हाँ 25 26 also present. 24 25 26 27 Present, ma'am. 28 Present, ma'am. 29 29 absent. 30 30 31 32 Present, ma'am. 33 34 Present, ma'am. 35 Present, ma'am. 36 36 यश रामटेके 36 Present, ma'am. Present. झोपलायस काय? 37 Present, ma'am. 38 Present, ma'am. 39 लेफ्ट कर सकते हो जिनका अटेंडेंस हुआ है. 40 Present. 41 Present, ma'am. 42 42 43 Present, ma'am. 44 44 45 Present, ma'am. 46 46 47 48 Present, ma'am. 49 49 50 प्रेझेंट 51 51 52 53 52 present. Present, ma'am. Oh, ma'am. Okay, 52 53 present. 54
Present, ma'am. 55, Present, ma'am. 56, Present, ma'am. 57, 57, 58, 59. ओके, completed. झाले सगळे? ओके, थँक यू. यू कॅन लेफ्ट.